Today we will study chapter number 5, lines and angles. As you all are aware about line segment, lines, angles, types of angles like acute angle, straight angle, complete angle, right angle. So in this chapter we will study about some types of lines and some special angles, the angles which are related to each other. So here are types of lines. First are intersecting lines. The lines which intersect each other means two or more lines intersect each other at any point. Then these type of lines are called intersecting lines. And the point where these lines intersect each other is called point of intersection. Here C is a point where line L and line M intersect each other. So C is called a point of intersection. Another type of lines, parallel lines. Parallel lines are those type of lines which never meets each other. Both the lines always remains at a constant distance. Another one is transversal line. A line which intersects two or more lines at distinct points. Then this line is called transversal. Here is a line P. Line P intersects two lines, line L and line M, at two distinct points. So this line P is called transversal line. So both line L and line M are not parallel. So both the lines may be parallel or may not be. So these lines are not parallel. So both these lines will meet to each other at any point. Suppose both the lines meet at some point like here, this point, and a line P intersect here. See, in this condition P is transversal to line L and line M. But when this line P goes into like this, है ना? So आप लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ये इस लाइन को इसी कॉमन पॉइंट पर कट कर रही है. This line P intersects both the lines at one point, at a common point. So in this condition we cannot say that P is a transversal line. But when it cuts in this way at 2 points, then this line P is transversal to line L or line M. See, transversal we can draw on parallel lines also. Parallel lines. So in this way when we draw line P, so this line P is transversal. But in this condition both line L and line M are parallel. And here line L and line M are not parallel. But in this condition you see the difference. जब यहाँ पर दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होती है ना, तब हम जब ये नेक्स्ट लाइन होती है जब कट करती है तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, तब तो ये ट्रांसवर्सल है. और अगर ये उसी पॉइंट पे कट करे जहां पर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइंस का, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं कही जाएगी. पैरेलल लाइंस में तो डेफिनेटली द लाइन कट्स टू लाइंस at two distinct points, so it is a transversal line. So I suppose it is clear to all of you that in which condition the transversal line we can say when two or more lines are not parallel. अब हम इसमें आगे इन पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस से रिलेटेड एंगल्स पढ़ेंगे. जैसे यहाँ पर जो एंगल है, इस तरह से इन एंगल्स में क्या रिलेशन है. When
both lines are not parallel, and when both the lines are parallel. Here are the names of some related angles. First one is complementary angles, second supplementary angles, third adjacent angles, fourth linear pair angles, fifth vertically opposite angles. So the first one is complementary angles. Complementary angles किस टाइप के angles होते हैं? When the sum of the measures of the two angles is 90 degree, is then these type of angles are called complementary angles. Means अगर कोई दो angles ऐसे हैं जिनका total 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाते हैं? Complementary angles कहलाते हैं. जैसे देखिए एक example, one angle is 60 degree, another angle is 30 degree. We add up 60 degree plus 30 degree is equal to 90 degree. Another example is if one angle is 40 degree, another angle is 50 degree, then the sum of both these angles is 90 degree. So both these angles are complementary angles. We can say these angles in another complementary angles. Here one more thing, that one angle is complement to other angle. Like 30 degree angle is complement to 60 degree angle, and 60 degree angle is complement to 30 degree angle. अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं? क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं. कभी आपको टू एंगल्स दिए जाएंगे, two angles are given and you have to tell which type of angles these are. So you add up both the angles and see whether they are 90 degree or not. Yeah? If the sum is 90 degrees, then you can say these angles are complementary angles. और कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको एक एंगल दिया जाए, 60 डिग्री एंगल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप क्या करेंगे? यू नो दैट सम ऑफ द measures of two angles 90 degree in complementary angles, so you subtract one angle from 90 degree. So 60 degree को अगर हम 90 degree में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 30 degree. So 30 degree is complement to 60 degree. तो एक एंगल अगर आपको दिया हो तो आप उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अब मान लो अगर हमारे पास 80 डिग्री एक एंगल हो और आपसे पूछा जाए फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, सो यू सबट्रैक्ट 80 डिग्री फ्रॉम 90 degree. So it will come 10 degree. So the complement of 80 degree is 10 degree. Or we can say the complement of 10 degree is 80 degree. So both these angles are complementary angles which add up 90 degree. Now the second one is supplementary angles. When the sum of the measures of the two angles is 180 degree, then these type of angles are called supplementary angles. Suppose one angle is 60 degree and another angle is 120 degree. So the sum of both these angles 60 degree plus 120 degree is equal to 180 degree. तो ऐसे जो कोई भी दो एंगल्स जिनका टोटल 180 डिग्री होता है वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. एंड वन एंगल इज सप्लीमेंट टू अनदर एंगल. हियर 120 डिग्री एंगल इज सप्लीमेंट टू एंगल 60 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल इज सप्लीमेंट टू 180 डिग्री. अब ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लें, 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो बोथ दीज एंगल्स आर ऑल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. ऐसे कोई भी दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं जिनका टोटल 180 डिग्री होता है. और अगर आपको एक एंगल दिया हो और उसका सप्लीमेंट आपको निकालना हो तो इसमें भी जैसे हमने 90 डिग्री एंगल में से माइनस करके निकाला था कॉम्प्लीमेंट, वैसे ही इसमें से निकालेंगे. अगर 60 डिग्री एंगल दिया हो और आपको इसका सप्लीमेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 180 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो इट विल बी 120 डिग्री. सपोज एंगल इज गिवन 70 डिग्री. अगर आपको एक 70 डिग्री एंगल दिया हो तो आपको इसका सप्लीमेंट निकालना हो तो व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री? सो यू सब्ट्रैक्ट 70 डिग्री फ्रॉम 180 degree. So it will be 110 degree. So 110 degree is the supplement of 70 degree and 70 degree is the supplement of 110 degree. Now the third one is adjacent angles. Two angles are called adjacent angles if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arms lie
on either side of the common arm. Vertex, आप जानते हैं vertex, तो vertex is a common point where two arms meet. जब कोई एंगल फॉर्म होता है, जैसे एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये बोथ द आर्म्स से कोई किस पे मिल रही है, इस पॉइंट पर, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज अ वर्टेक्स ना, दिस इज अ कॉमन पॉइंट, इट इज कॉल्ड द वर्टेक्स. तो कोई भी दो एंगल्स, देखो यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है ना, मैंने इसमें बनाया है एडजेसेंट एंगल्स क्या है, अगर कोई भी दो ऐसे एंगल्स हैं जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ पे देखो कॉमन वर्टेक्स क्या है, कॉमन वर्टेक्स है O, और एक कॉमन आर्म है. अब इसमें कॉमन आर्म क्या है, OB. OB इज अ कॉमन आर्म, मीन्स दिस आर्म लाई ऑन बोथ द एंगल्स. देखो अब इसमें एंगल एक एंगल बन रहा है, एंगल AOB, इसमें ये वाली आर्म है OB, और दूसरा एंगल बन रहा है एंगल BOC, इसमें भी ये वाली आर्म है ना OB. तो एंगल AOB, दिस एंगल, एंड एंगल BOC, दिस एंगल, बोथ द एंगल्स आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल्स. अब ये फिगर किसी और तरीके से भी हो सकती है. अब जैसे इसमें देखो मैंने एक डिफरेंट फिगर बनाई है, इस फिगर में भी देखो एंगल AOB, दिस इज द कॉमन वर्टेक्स O, OB इज अ कॉमन आर्म. तो दिस एंड नॉन कॉमन आर्म्स, जो नॉन कॉमन आर्म्स है, देखो इस एंगल की मेकिंग में ये OA जो आर्म है और दूसरी आर्म है OB, लेकिन तीसरी आर्म OC इस एंगल में नहीं है. एंगल AOB में नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, OC, और एंगल BOC में नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है, OA. लेकिन ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म्स के दोनों साइड में है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में. इसमें भी देखो OB है जो कॉमन आर्म है, उसके राइट साइड में नॉन कॉमन आर्म है OC, और दूसरी वाली OA दूसरी साइड में है. तो मीन्स कॉमन आर्म के वन साइड में एक आर्म होगी और उसकी दूसरी साइड में दूसरी आर्म होगी. जब तब जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स. So both these angles are adjacent angles, where adjacent angles if they have a common arm, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, उसमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए O, जैसे यहाँ पे वर्टेक्स O है, और दो नॉन कॉमन आर्म्स हो जो कॉमन आर्म के दोनों तरफ हो, एक साइड में और दूसरी साइड में. इन दिस कंडीशन द एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. Now fourth one is linear pair. A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. अभी देखो ये वाला डायग्राम हमने एडजेसेंट एंगल्स में बताया था कि जिसमें एक कॉमन आर्म होती है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है, और दो नॉन कॉमन आर्म्स के इधर साइड पर होते हैं. पर यही एडजेसेंट एंगल्स का ऐसा पेयर जिसमें इन दोनों का टोटल 180 डिग्री हो, तो उस एडजेसेंट एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर. सपोज इसमें ये नॉन कॉमन आर्म यहाँ से अगर हम इरेज करके इसको हम ऐसे एक्सटेंड करें स्ट्रेट लाइन में, एंड यू नो इन अ स्ट्रेट लाइन द एंगल फॉर्म ने स्ट्रेट एंगल, एंड द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज व्हाट 180 डिग्री. 180 डिग्री. तो अब हम इसमें यहाँ पे भी देखो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं इस तरीके से, और ये इसमें भी देखो एक कॉमन आर्म कौन सी है OA, और यहाँ में हमने B करा, तो ये क्या हुआ, कॉमन आर्म हो गई OA, और नॉन कॉमन आर्म इसके दोनों साइड है, एक इधर है एक इधर है, OB एंड OC. नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, और वन इज अ कॉमन वर्टेक्स दैट इज O. लेकिन ये जो पेयर है एडजेसेंट एंगल्स का, ये ऐसा पेयर है जिसका एडअप क्या होगा 180 डिग्री. सो लीनियर पेयर किसका पेयर होता है, एडजेसेंट एंगल्स का ही पेयर होता है, जिसका नॉन कॉमन साइड्स जो है वो अपोजिट रेज होती है. देखो एक बिल्कुल अपोजिट है, एक रे इधर है और एक रे इस साइड में है. यहाँ पर तो ये कंडीशन तो है कि इसमें जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के इधर साइड पर है, एक इधर है एक इधर है, लेकिन इसके साथ साथ ये दोनों जो रेज हैं ये अपोजिट भी है. OB इज अपोजिट टू OC, और इस पेयर का टोटल क्या है 180 डिग्री. तो ऐसे कोई भी एंगल्स जब इस तरह से बने होते हैं एडजेसेंट एंगल्स जिनका टोटल 180 डिग्री होता है, तो उसे कहते हैं लीनियर पेयर. नाउ फिफ्थ वन इज
vertically opposite angles. When two lines intersect each other, they form four angles at their point of intersection. ये मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस बताया था आपको, तो बताया था ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दैट पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये जिस पॉइंट पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो हियर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एल एंड लाइन एम. तो जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर फोर एंगल्स फॉर्म होते हैं. अब फोर एंगल्स कौन से, देखो एक ये वाला एंगल है, एक ये एंगल है, दिस वन, एंगल 1 एंड एंगल 2 हियर, एंड हियर एंगल 2, here 3 and 4. So these opposite angles, see angle 1 and angle 3, these two angles are opposite to each other. So these two opposite angles are called the vertically opposite angles, and both these angles are equal to each other. Angle 1 is equal to angle 1 is equal to angle 3. These two angles are called vertically opposite angles. And these two angles, angle 2 and angle 4, these are also called the vertically opposite angles. And both the vertically opposite angles are equal. Angle 2 is equal to angle 4 and angle 1 is equal to angle 3.